Welcome back. Now, the Varanasi court is expected to pronounce its decision on the Gyanvapi Mosque survey case today. It was hearing a petition by a group of 5 women petitioners seeking permission to worship idols located on the western wall of the mosque. Now, I think we've got Madhurima joining us live from outside the court in Varanasi. Madhurima, give us a sense of what we are expecting today. Now, one of the demands that has been made is that the Advocate Commissioner who was appointed by the court be replaced because, there is a group that accuses him of being biased. Well, yes, Nupur, absolutely. It's going to be a very crucial verdict today because the court will be deciding as to Mr. Ajay Kumar Mishra. Will he be continuing as the court's commissioner and conducting the very crucial survey of the Gyanvapi Mosque or not? There could be 2 other options as well, that either he could be changed or at the same time an additional person could be added into the team of Mr. Ajay Kumar Mishra. Now, we also spoke to the petitioner's side lawyer in the morning exclusively, and he said that it is highly unlikely that the court is going to make any changes because in the first place it was Mr. Ajay Kumar Mishra who was appointed by the court itself. However, they are asserting that it would not really affect their case because their prerogative is less of changing of the court's commissioner but to get permission to go inside the court and collect the evidence, because that's the crucial part and that is what the mosque side has been opposing. Even at the time on in the April verdict as well, when the court had appointed this particular commission, at that time they had also resisted, and once again they are resisting, Nupur. But that would be mean to see whether court will be chalking out a map for the entire survey or not, because the last time when the team of the court's commissioner had reached the gate number 4 of the Kashi Vishwanath corridor, that is where the mosque is located. Right. The initial first days where there are few bricks over there considered as Gauri Shringar, though it is just the threshold of the temple, there they were allowed to conduct the survey. But at the same time, when they wanted to go inside to collect the main evidence from the main garb as it is being contested by the Hindu side, they were stopped. So this is the main contention, that one, will Mr. Ajay Kumar Mishra will be replaced or not, and second, how is the court going to chalk out the entire movement of the court's commissioner so that they can go freely inside and collect the evidence that will support their contention that it is in fact a temple in the beginning and not the mosque. All right, stay with us, Madhurima. In fact, Madhurima earlier this morning has spoken to the plaintiff's advocate, and here's what he told her. कि ऑर्डर हमारे ख्याल से लंच के बाद ही आएगा, और रहेगी बात कमिश्नर बदलने की, तो हमें लगता है कमिश्नर साहब भी नहीं बदले जाएंगे और कोर्ट की कार्रवाई, जो कमीशन की कार्रवाई है वो पूरी होगी। उसमें माननीय न्यायालय का तो आदेश, चूँकि कमीशन का ऑर्डर हो ही गया है, कार्रवाई बीच में ही 1.25 दिन होने के बाद रुकी हुई है, उस कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और कमिश्नर साहब भी नहीं बदले जाएंगे, ऐसा हम लोगों का विचार है। क्योंकि हम लोगों ने सारे पक्ष को रखा है, उनका आरोप भी प्रतिवादियों का निराधार है, उन लोगों के विरोध में कहीं जो है कोई दम नहीं है, वो लोग केवल जो है इसको लटकाना भटकाना चाह रहे हैं, कहीं कुछ इसमें रखा नहीं। इसलिए हमारा व्यक्तिगत मानना है कि माननीय न्यायालय कमिश्नर को बदलेगा नहीं। अगर बहुत दिक्कत होगा तो हो सकता है माननीय न्यायालय स्वयं चल सकें, कोर्ट वहाँ मौके का स्थल का मुआयना करें, ऐसा हो सकता है। लेकिन कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ऑर्डर हो ही चुका है, सुचारू रूप से चलेगा, इसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं आने वाला है। सर, दूसरा सवाल मेरा इस इशू पर है कि एक आपसे ये भी प्रयास किया गया आप लोगों का कि भाई अंदर जाने दिया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात पे अड़ा हुआ था कि अंदर नहीं जाने को मिलेगा। तो क्या आपने कोर्ट से ये दरखास्त रखी है कि भाई हमें एक तो अंदर जाने दिया जाए और अपने ऑर्डर में साफ साफ बताएं कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं? क्योंकि पिछली बार जब आप लोग पहुँचे थे तो गेट पर रोक दिया गया था और कहा था कि खाली बाहर की परमिशन मिली है। नहीं, ऐसा है, देखिए, एक भ्रम की स्थिति पैदा किया जा रहा है। माँ श्रृंगार गौरी के नाम पे एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि ये बैरिकेटिंग के बाहर हैं। जैसे कहा जाता है
प्रतिपक्षी या प्रतिवादी जो हैं ये भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं माँ श्रृंगार गौरी का ऑर्डर हुआ है, माँ श्रृंगार गौरी उस बैरिकेटिंग के बाहर हैं। लेकिन जो स्थल बैरिकेटिंग के बाहर ये जो बता रहे हैं वो स्थल माँ श्रृंगार गौरी का मूर्ति कहिए या उनकी प्रतिमा नहीं है, वो केवल एक चौखट है। चौखट जो उस मंदिर पश्चिमी द्वार जो आदि विशेश्वर का था, जो अब खंडहर की स्थिति में है, आज भी विराजमान है, जिसको बंद कर दिया गया है, वो चौखट जो है उसी को ये कह रहे हैं कि माँ श्रृंगार गौरी है, इनका कमीशन कर लीजिए और बंद करिए। जबकि वस्तु स्थिति है कि माँ श्रृंगार गौरी उस गर्भगृह में आदि विशेश्वर के ही आसपास कहीं हैं, जिनको जो बैरिकेटिंग के अंदर जो बाधित कर दिया गया है। तो जब माँ श्रृंगार गौरी अंदर हैं, जिसका आप विरोध कर रहे हैं, आपका कहना है कि अंदर नहीं है, हम कह रहे हैं अंदर हैं, इसी की कमीशन होनी है, इसी की रिकॉर्डिंग होनी है कि वस्तु स्थिति क्या है, अंदर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कहाँ चला गया। क्योंकि एक सामान्य सी हिंदू धारणा रही है कि जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो चौखट को प्रणाम करते हैं, ये हमारी धारणा। उसी चौखट को कह रहे हैं कि यही श्रृंगार माँ श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, जबकि वहाँ एक पत्थर शिला है जिसमें तिकोना बना हुआ है, लोग पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं कि जब आदि विशेश्वर और माँ श्रृंगार गौरी जब अंदर बंद हैं तो पूजा कोई करने तो जाता नहीं था, उस चौखट को ही लोग प्रणाम करने लगे, पूजा अर्चना करने लगे। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये स्थिति है कि अरे नहीं यही है, इसी को करिए। जबकि हमारे दावे में भी अराजी नंबर जो 9130 की जो बात कही गई है, जिस पर आदि स्वयंभू विशेश्वर स्थित हैं और ज्ञानवापी परिसर स्थित है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, उस भूखंड पर कोई विवाद नहीं है। और हम भूखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे दावे में उस तहखाने का जिक्र है, जिसकी बात ये कर रहे हैं कि नहीं इनके दावे, जबकि हमारे दावे में सारे तथ्य रखे गए हैं।